Hey guys, everyone. So this is me, Siddharth, along with my dear friend, Shlok. And first of all, I'd like to congratulate every Messi fan out there. He has finally conquered his final peak. This is Barcelona, but we are talking about Argentina here. So basically, we have been supporting Barcelona and Messi since I think we were in college together in 2018, right? I guess yes. More And before so 20. I think Yeah, before 2018. So I remember the first match we were watching. I think it was an El Clasico. It was Real Madrid versus Barcelona, and it was the iconic 3-2 win in which Messi scored in the final minute, and he won the match, and we all went mad. And since then, we Correct. have been following him, whether it's been for Barcelona, whether it's been for Argentina, whether it's been for PSG. Our emotions for him have only grown stronger. And then we had a lot of rivalry in our group as well. There was Correct. me, him, and one of our other friend. We all were Messi fanatics, and we had one or two, who used to follow Ronaldo. But it was great fun. It was great fun. And finally, he has conquered his final peak. So I would just like to read something first of all, which I sent him, that Messi's career is a tale of two halves. From its inception in 2006 to 2013, Messi was a footballing royalty. He was surrounded by the greats, Iniesta, Xavi, Piqué, under the greatest tactician I think the world has ever seen, Pep Guardiola. And there was a Yeah. phase when And anything he used to do, it was like, oh, he's in a great team. You put him in Argentina and he won't be able to perform. And we always believed in him because we knew the kind of talent he possessed. And there are a lot of people who used to say, "Oh, he doesn't work that hard," and it's just because he's not showing off, just because he's not coming out on YouTube and Instagram and saying and doing this stuff like this, doesn't mean he's not working hard. So I think, and I think 2014, Ashok, 2014 का वर्ल्ड कप हम लोग देखे थे? नहीं नहीं. नहीं अपने तो अपन तो मिले भी नहीं थे। बट मैंने वर्ल्ड कप तो हाँ. देखा ही था क्योंकि ऑब्वियसली फुटबॉल जो है फॉलो तो करते थे बट ऐसे नहीं था कि तो इतना उस पागल है। उस फाइनल की कुछ मेमोरीज उस टाइम पे क्या आपका था, मतलब व्यू पॉइंट? मेसी को जानते थे आप पहले से? हाँ आई गेस मेसी और रोनाल्डो ये ऐसे टर्म्स थे जिन मतलब फुटबॉल मतलब मेसी और रोनाल्डो ऐसे करके था। एंड जब हम वर्ल्ड कप हम्म. देख रहे थे उस टाइम मुझे याद है कि मेसी फाइनल में था एंड ही वाज लाइक ऑल क्लीन शेव्ड ऑल फाइटिंग हम्म. मोड में था कि आज तो मैं सबको ढूंढ दूंगा काइंड ऑफ। और उस 2014 वर्ल्ड कप में वो बहुत अच्छा खेला भी था मतलब ही वाज द प्लेयर ऑफ द हम्म. टूर्नामेंट और 4 गोल्स उसने मारे थे। द वे ही प्लेज दैट वाज जस्ट फिनोमिनल। सो आई गेस वो एक स्टार्ट पॉइंट कह सकते हो कि मैंने देखा था और ऐसा था कि हाँ ठीक है वर्ल्ड कप है अर्जेंटीना हार गई जर्मनी जीत गया। दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज नॉर्मल बट आई वाज लाइक हाँ ये मेसी कुछ तो है कुछ तो नाम है तो क्यों है इसलिए है। बट आई गेस मतलब जब मुझे भी याद है, मतलब हम लोग देख रहे थे फाइनल, बट उतना इमोशन जुड़ा नहीं था उस टाइम अर्जेंटीना से। तो मतलब हाँ, मेसी मेसी सब कह रहे थे, तो भैया देखे हाँ मेसी क्या खेलता है। और भाई हाँ उस टाइम तो अलग ही लेवल था उसका, भले ही उसका हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दो जो हिगुएन की जो मिस थी, जो हम लोगों को बाद में पता चला कि कितनी ज्यादा इजी थी, हाँ लेकिन और मतलब कि उसके बाद फाइनल, एक के बाद एक फाइनल, दे केप्ट लूजिंग कोपा तीन अमेरिका, आई थिंक 3 फाइनल। हाँ एंड उसमें उसका पेनल्टी भी मिस की, जिसकी वजह से काफी उस हाँ पर प्रेशर भी था, और रिटायर भी, इनफैक्ट रिटायरमेंट ले लिया था 2016 में, हाँ व्हेन ही सेड दैट आई एम डन विद अर्जेंटीना, आई हैव गिवन माय एवरीथिंग, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, एंड आई एम गोइंग बैक टू द प्लेस आई बिलोंग, बार्सिलोना. And but he came back and see what he has achieved: Copa America finalissima, and now the crowning glory, द वर्ल्ड कप। the World Cup. अगर उस टाइम पे Hmm. उसने रिटायरमेंट ले लिया होता सो हम शायद वो सब चीज देख ही नहीं पाते जो आज देख रहे हैं मतलब जो जैसे आज जो उसने वर्ल्ड कप जीता है उसके बाद से उसने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता वो मतलब एक एक जो इच्छा थी जो आशा थी जो उससे जुड़ी हुई थी वो कितने लाखों करोड़ों फैंस का उसने जो सपना था पूरा किया है। अब हम जैसे हम इंडियंस हैं राइट सो इंडिया कब पहुंचेगा वर्ल्ड कप में पता नहीं एंड इट्स अ टफ कंपटीशन आउट देयर
बट वी ऑल लव मेसी, और उसको हम सपोर्ट करते हैं इस वजह से। हम लोग मेसी फैंस हैं बिकॉज द वे ही प्लेज, ही जस्ट मेक्स अस हिज फैन। सो उसका गेम इतना अच्छा है, बिल्कुल और वो मतलब उस प्लेयर का जो ऑरा है फील्ड पे, वो आई गेस इट्स नॉट, यू कैन नॉट कंपेयर दैट एनीवन। जैसे मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले पोस्ट आया था कि लियोनेल स्कलोनी ने पोस्ट किया था कि डू नॉट रिटायर मेसी को, जब हम्म उसने रिटायरमेंट लिया था वो वापस आया। और जब वो वापस आया तो हम्म लोगों को कह रहे थे कि ये कैसा बंदा है, ये अपनी बात पे नहीं टिकता है, ये वापस आ जा रहा है, आ जा रहा है। आई गेस आ गया, अच्छा किया उसने। इतना उसने, उसका बेस्ट डिसीजन आई थिंक यही है कि वो वापस आया, और उसने एक एक करके सारे जितनी भी ट्रॉफीज थी जो आप जीत सकते हो एक नेशनल टीम के साथ, वो जीत गया। सो डेफिनेटली यार। और आई थिंक ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ टाइम पीपल सोचते हैं कि अरे बार्सिलोना मेसी पीएसजी को फॉलो कर रहे हैं, दे डोंट सपोर्ट इंडिया, इंडिया के फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करते। बट ऐसा नहीं है, लेकिन जब इंडिया है नहीं, अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, तो फिर अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया को अच्छी टीम या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली अगर इंडिया खेलेगी तो इंडिया को हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे वो नेहरू कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। और डेफिनेटली हम लोग करेंगे जब, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है, उसका एक्सपोजर नहीं है। और आई थिंक जैसे आई थिंक तुमने इस लोग एक मीम बहुत या मीम या वीडियो डाला था कि फुटबॉल हैज मेड फेमस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, एम्बापे, हाँ, बट मेसी हैज द पर्सन हु हैज मेड फेमस फुटबॉल, एंड आई थिंक हम दोनों के लिए तो वो एकदम सही है, क्योंकि आई थिंक वी डिडंट वॉच फुटबॉल, हम लोग और ऑब्वियसली क्रिकेट के फैंस थे हमेशा से। आई थिंक बट हिज मैजिक, जब उसके पास बॉल आती थी एंड यू आर एंटिसिपेटिंग, भाई ये क्या करेगा वो लौंडा, क्या ड्रिबल करेगा, एक पास देगा जॉर्डी अल्बा को या फिर शूट करेगा, फ्री किक करेगा, क्या करेगा। आई थिंक सिंस देन वी हैव बीन फॉलोइंग हिम। हम लोग यार सबसे पहले एक जरूरी डिस्कशन कर लेते हैं जो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है, कि मेसी पे कितना प्रेशर था इस वर्ल्ड कप के पहले। क्या उससे उम्मीदें थी, क्या उसके ऊपर कह सकते हो कि लोग इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा नहीं करेगा या अच्छा नहीं खेलेगा। तो वो उस प्रेशर की बात करते हैं, वो जो जो वर्ल्ड वाइड फैंस उसको मिल रहा था, और स्पेशली अपने खुद के अर्जेंटीना फैन से भी उनको मिल रहा था। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या व्यू है? ये देखो, सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि मेसी प्लेस फॉर क्लब एंड कंट्री। व्हेन जब भी वो क्लब के लिए खेला, ही हैज वॉन एवरीथिंग, ही हैज वॉन द चैंपियंस लीग, ही हैज वॉन leagues, 10 leagues I think he has won in Spain, he has won the Ligue 1 in France. So Messi in club has won everything. If we talk about simply about club level, he was the GOAT after the 2014-15 Champions League, and he had Undoubtedly. won everything he was. But when it comes to Argentina, I think क्या, या तो हम लोग सपोर्टिंग कास्ट की बात कर लें, या तो हम लोग डियोगो मैराडोना से कंपैरिजन की बात कर लें। जो आइकॉनिक खेल की वजह से मैराडोना ने जिताया था 1986 में। आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेसी को हमेशा से हॉन्ट करता आया है कि नो मैटर जो भी वो कर ले अपने क्लब के लिए, जितना भी अच्छा खेल ले, जितने गोल्स मार ले, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैज ही डन फॉर द नेशनल टीम, नेशनल टीम से क्या जीता है, उसने कितने गोल किए नेशनल टीम के लिए। आई थिंक वो एक प्रेशर हमेशा से मेसी के ऊपर रहा है, मैराडोना को मैच करने का प्रेशर, अर्जेंटीना के लिए कुछ जीतने का प्रेशर, आई थिंक। और 2014 वर्ल्ड कप में आई थिंक जब वो फाइनल में हारा था, आई थिंक तभी उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस लगना शुरू हो गए थे कि क्या वो क्यों अपनी फॉर्म जो क्लब लेवल पे बार्सिलोना के लिए दिखाता है, वो अर्जेंटीना के लिए नहीं दिखा, बार्सिलोना को ज्यादा अर्जेंटीना को कम मानता है। तो ऐसे उसके क्रिटिक्स बहुत थे जो कि कहते थे कि शायद वो अपने क्लब को प्रेफरेंस देता है ओवर द कंट्री। बट आई थिंक जैसे जैसे आई थिंक 2014 के बाद 2015 कोपा अमेरिका हारा, 2016 कोपा अमेरिका हारा, तो आई थिंक समवेयर आई थिंक अर्जेंटीना ऑल्सो रियलाइज कि दिस इज द गाय, हमारे पास कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं, गुएरो, डी मारिया, हिगुएन और ओटामेंडी। एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक प्लेयर है, हमारा टैलिस्मैन है वो, जब उसके पास बॉल आएगी वो कुछ करके दिखाएगा। और ऐसा नहीं है कि उसने कभी वर्ल्ड कप में या फिर कोपा अमेरिका में वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया, उसने दिया। बट अब वही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे एक मैच है आपके पास, फाइनल 4 साल में एक बार आता है, चैंपियंस लीग तो चलिए आप
हर साल खेल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बेटर करने की। बट वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार फाइनल में आप हार गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, प्रेशर तो आई थिंक, और ये इसका लास्ट चांस था, आई थिंक हम लोग भी जानते थे, क्योंकि ये रोनाल्डो चाहे भले बोलता हो कि मैं 40 साल तक वर्ल्ड कप खेलूंगा, और लेकिन हमें पता था कि ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है। तो आई थिंक प्रेशर उस पर पूरी तरह था, he was surrounded by all sides. Argentina, they were telling him that no matter how much well you have done for the club, you have to do it for the country. I remember कि पता नहीं तुम्हें याद होगा नहीं, जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए थे लास्ट टाइम और अर्जेंटीना को लास्ट मैच जीतना था इक्वाडोर से, आई थिंक था, तो ही स्कोर्ड अ हैट्रिक, ही कैरिड अर्जेंटीना टू द वर्ल्ड कप। और आई करेक्ट। थिंक जो फर्स्ट मैच में हुआ सऊदी अरेबिया से, उसके बाद तो आई थिंक वी आर ऑल लाइक ही इज डन, दे आर डन, एंड नो मैटर हाउ मच he does, he'll not be able to achieve what he has done for Barcelona. तो what do you think, क्या मन में चल रहा था जब सऊदी अरेबिया से हारा? Were you thinking like this is gone? आई गेस तो पहली चीज तो ये थी कि जब उसने पेनल्टी ली फर्स्ट, जब उसको मिली तो, और उसने ली और उसने कन्वर्ट कर दी पेनल्टी, तो उस टाइम पे ये था कि हाँ यार, अब तो ये अनाउंस कर दिया है मेसी ने कि आई एम हियर एंड आई एम हियर टू विन। बट जब सऊदी अरेबिया ने काउंटर कर दिया और 2 गोल से ये लोग जो है हार गए, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है तो ही शुड विन, ऐसा नहीं होगा, ही हैज टू फाइट। और जिस हिसाब से हारी थी वो, जैसे अर्जेंटीना प्लेयर्स एकदम कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ कुछ भी डिफेंस जो है ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि यार इस बार भी क्या मेसी पे ही डिपेंडेंट है सारे लोग, क्या इस बार भी सब लोग जो है अर्जेंटीना उस हिसाब से नहीं खेल पाए, क्या मेसी का फुल यूज नहीं कर पाएगा जो उनका मैनेजर है, क्या वो फिर से मतलब ग्रुप स्टेज पे करते करते किसी तरह आगे पहुंच के फिर हार जाएंगे, ग्रुप स्टेज से निकल भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे दिमाग में आ रहे थे। बट कहीं ना कहीं अब जैसे उस टाइम पे था ना कि हम इमोशंस का जो ना अप एंड डाउन हो रहा था कि अब यार कैसे होगा, ये तो हार गए, और फिर बाकी जो और प्लेयर्स हैं वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, जैसे ब्राजील थी, ब्राजील बहुत अच्छा खेल रही थी, हाँ, तो ज्यादातर टीमों की अच्छी थी पहले 2 मैचेस में, चाहे वो स्पेन हो जो 7-0 से जीती थी, हाँ हाँ पुर्तगाल आई थिंक रोनाल्डो ने गोल किया था, पेनल्टी उस पर मारी थी। हाँ हाँ, सो सब मतलब प्रेशर बिल्ड हो रहा था। क्या सिचुएशन थी, तुम्हें क्या लग रहा था 2022 वर्ल्ड कप में आने से पहले, जब तुमने स्टार्ट किया था, लग रहा था इज दिस द फाइनल चांस, इज दिस द लास्ट चांस? करेक्ट करेक्ट, वही लग रहा था। जैसे वर्ल्ड कप की अगर पहले की बात करें, ठीक है, तो ये था कि बंदे ने कोपा अमेरिका जीता एंड फिनालिज्मा जीत लिया, तो सब लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, ये तो ट्रॉफी है, तुम साउथ अमेरिका में कॉम्पीट करके जीत गए हो, और लेकिन तुम कभी भी यूरोप की उस टीम ना मैराडोना बेटर है। के, हाँ मैराडोना के कभी कंपैरिजन नहीं आ पाओगे, ही स्टिल बेटर, ये सब ऐसा कह रहे थे। एंड ये भी था कि जो हमारे मेसी का नेमेसिस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 2 ट्रॉफी जीती थी उसने, यूरोज और नेशंस लीग, सो वो ऐसा लग रहा था कि यार हाँ ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं। एंड जब फर्स्ट मैच हुआ और ये लोग हार गए, सो ऐसा लगा कि अब ये अर्जेंटीना जैसी 2018 में थी, किसी तरह खींच खाच के पहुंची थी, वैसा ही इस बार भी होगा कि यार ये भी शायद ही पहुंच पाए, क्योंकि आगे आने वाली जो टीम्स थी मेक्सिको और पोलैंड, सो पोलैंड में ऑब्वियसली लेवेंडोस्की है जो एक थ्रेट है, कहीं कभी भी ले लो, किसी भी टाइम ले लो, लेवेंडोस्की इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। सो वो जब हारी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में, सो ये था कि मेक्सिको और पोलैंड से शायद जीत भी ना पाए ये लोग, कहीं ग्रुप स्टेज से ही बाहर ना हो जाए। सो या प्रेशर तो था, और जब हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस अब छोड़ दो, अब बेकार है वर्ल्ड कप हम हमारे लिए, अब और नहीं देख पाएंगे। बट ट्रस्ट, ठीक है। बट आई थिंक मुझे याद है कि पहले मैच के बाद भी ऐसा हो रहा था कि ओके अब तो मतलब लग रहा है हार जाएगी, बट उस टाइम पे मेसी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने सपोर्टर्स को कहना चाहूंगा कि मैं हम लोग उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप लोग हम पे विश्वास करिए, हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे। आई थिंक समवेयर उसके दिमाग में होगा यार, चलो पहला मैच हार गए, आइसलैंड से आई थिंक 2018 में ड्रॉ हुआ था, मेसी ने पेनल्टी मिस की थी, और पेनल्टी उसके मिस बाद की। एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इमेज आई थी कि अब तो गए ये लोग। लेकिन इस बार मैंने देखा कि फर्स्ट मैच के बाद मेसी वाज लाइक पॉजिटिव, ही वाज लाइक मैं इस ग्रुप पे भरोसा करता हूँ, इस ग्रुप ने कोपा अमेरिका जीता है, तो हम लोग इतनी जल्दी गिव अप करने वाले नहीं हैं। अभी 2 मैच हैं, और हम अपने जो फैंस है, ज्यादातर हम लोग मेसी को जानते हैं, वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो अपने जैसे कहते हैं अपने फुटबॉल को बात करने देता है, तो आई थिंक इस बार वो
काफी वोकल था फर्स्ट मैच के बाद, उसने बोला कि डोंट वरी, विल बी बैक। देन वी कम ऑन टू द द मैक्सिको गेम आई थिंक, एंड दैट गोल हाफ टाइम हो चुका था, इट वाज 0-0। आई थिंक इट वाज 64th या 65th मिनट ऐसे था, and he got हाँ the ball outside from the D, and and what a shot. I mean उसको मैं eagle eye मतलब bird eye view I think से देख रहा था, और हाँ एंगल वो ऐसा इतना प्यारा एंगल वो निकाला था कि मतलब, एंड दैट वाज द मोमेंट वी वर लाइक हाँ हाँ। हाँ। तो पहले गोल जाने के बाद क्या फील था, मतलब लगा कि कुछ स्पेशल होने वाला है? आई गेस यस, क्योंकि वो जो गोल था, अगर आप बर्ड व्यू से ना देखो तो ऐसा लग रहा था कि हाँ डी के बाहर जस्ट खड़े होके, ऑब्वियसली वो हम्म। गोल तो बहुत प्यारा था, और ऐसा था कि हाँ डी के बाहर तो एक्सपीरियंस है मेसी को गोल मारने का, कि हाँ वो मारेगा गोल। और डी मारिया ने पास दिया, मेसी ने शूट किया, वो गोल हो गया। सो हम लोग एक तरह से मतलब रिजुमिनेट हो गए थे कि हाँ भाई अब तो आ गया मेसी, अब मारेगा, यही मारेगा। और लेकिन एक चीज मन में और भी था कि मेसी के ही ऊपर अभी भी डिपेंडेंस है क्या, मतलब मेसी ही कर रहा है क्या सब कुछ। बट ऐसा था कि वहां पे बहुत ही तगड़ा गेम चल रहा था। जब हम पोस्ट मैच एनालिसिस देखें कहीं पे भी, तो वहां था कि मेसी वाज एक्चुअली एनालाइजिंग कि हाउ ही कैन ब्रेक थ्रू द डिफेंस ऑफ मेक्सिको। और वो उसने सही टाइम पे सही शॉट लिया, और इसीलिए दैट्स व्हाई ही इज लियोनेल मेसी, राइट। सो वो शॉट Yeah. देने की वजह से आई गेस उस टाइम पे वो बहुत ही बड़ा बूस्टर भी था टीम के लिए, जब उसने गोल मारा। और फिर तब ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अभी भी हम गेम में हैं, अभी भी हैं, अब जीत सकते हैं। और आई थिंक वो मैच जीते, उसके बाद आई थिंक पोलैंड से जब मेसी की पेनल्टी मिस हो गई थी, एंड हाँ वी वर ऑल लाइक अरे यार फिर से वही स्टोरी कंटिन्यू, फिर से लग रहा है कि वो बाहर हो गए, फिर से गाली खाए हुए। लेकिन आई थिंक उस टाइम पे ऐसा मुझे पहली बार लगा कि नहीं यार, ये वन मैन टीम नहीं है, दिस हाँ इज अ टीम विच इज रेडी टू सपोर्ट देयर कैप्टन इफ नीडेड। हाँ, मेसी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसे लीड करना है, उसे गोल करना है, बट इन केस वो नहीं कर पाया गोल, इन केस वो कुछ मैजिकल नहीं दिखा पाया, ये एक ऐसी टीम है जो कि ना केवल गोल करने में मोर देन केपेबल है, बल्कि सेव करने में भी। आई थिंक पोलैंड के मैच में अल्वारेज अल्वारेज ने गोल किया था। सो मोलिना ने असिस्ट दिया था, और मैकएलिस्टर ने गोल किया था। मैकएलिस्टर को मैन ऑफ द मैच भी मिला था। सो हम्म। वो गोल जब हुआ तो आई गेस मतलब उसके बाद एल्वारेज ने भी गोल किया। बट ये था कि हम्म। ये टीम जो है ये पूरा एज अ टीम खेल रही है, ये मेसी पे डिपेंडेंट नहीं हम्म। है। मेसी एक अच्छा प्लेयर है, एंड हम्म। ही इज द प्लेयर ऑफ द टीम, बट this whole team is trying to put their efforts and trying to win the match. So पोलैंड एक ऐसा मैच था जिसमें कह सकते हैं कि पूरी टीम का जो एफर्ट्स है वो दिख रहा था कि हाँ अब पूरी टीम ने मेहनत कर रही है। और आई थिंक लास्ट टाइम आई थिंक 2018 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना जस्ट इन हुई थी लास्ट में, आई थिंक गोल हुआ था मेक्सिको के अगेंस्ट ही था आई थिंक, और आई थिंक मेक्सिको या नाइजीरिया के अगेंस्ट था। आई थिंक लास्ट मोमेंट पे किसी गोल करके पहुंची थी। आई थिंक इस बार जब टेबल टॉप करके पहुंची, क्योंकि अगर टेबल में सेकंड आते हो तो उनका फिर से वही राउंड ऑफ 16 में फ्रांस से होता है, और लास्ट टाइम आई थिंक राउंड ऑफ 16 में फ्रांस से खेलना और फाइनल में फ्रांस से खेलना, दोनों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि एस मतलब पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। फाइनल में खेलना, राउंड ऑफ 16 में हो सकता है फ्रांस से लोग हार जाते हैं, बट आई थिंक राउंड ऑफ 16 में जो टाई मिला ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मतलब फिजिकल खेल रही थी, तो आई थिंक मेसी ने फ्री किक ली, उसके बाद बॉल आई, फिर ऑटोमेंडी ने उसे असिस्ट किया, और वो जो प्यारा सा एकदम निकाला था, एकदम ऐसा लग हाँ रहा था स्लो मोशन में गोल किया है उसने। तो मतलब ऐसा था कि हाँ, एक टाइम पे लग रहा था 2-0 पे आराम से लोग जीतेंगे, बट उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक गोल किया, और जैसा कि अर्जेंटीना वो जानते हैं प्रेशर पे लास्ट टाइम भी थोड़ा पैनिक कर ही जाते हैं लोग, बट आई थिंक एमी मार्टिनेज ने काफी अच्छी सेव की है। आई थिंक मुझे याद है उस मैच के बाद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जितने प्लेयर्स थे वो बाद में उससे सेल्फी ले रहे थे मेसी के साथ। आई थिंक ये दिखाता है कि एक ये ऐसा प्लेयर है, इतना स्पेशल प्लेयर है कि आप चाहे उससे हारे चाहे आप उससे जीते, उसके अगेंस्ट खेलना ही एक अपने आप में इतना बड़ा ऑनर है। भले ही आप उस पर डिफेंड ना कर पाए हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसके अगेंस्ट खेल के आप उतरते हो तो आपको मानना पड़ता है ही इज द बेस्ट वी हैव, चाहे आप फोटो लो चाहे आप उसकी जर्सी लो। आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थिंक काफी अच्छा परफॉर्म की एक तरह से देखे तो, बट दैट मैच बिलोंग टू आई थिंक मेसी कम्प्लीटली। आई गेस यस। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस लेवल पे टीम है उसने काफी अच्छी टक्कर दी थी, और हमको जैसे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया
मतलब ठीक है नॉर्मल टीम है, ऐसे तो बहुत आसानी से जीत जाएगी, ऐसा नहीं था। वो लोग एक कंपटीशन पुटअप कर रहे थे राउंड ऑफ 16 के हिसाब से। और अगर आप ध्यान से देखो तो ऑस्ट्रेलिया में सब लंबे लंबे खिलाड़ी थे, तब हाइट सबकी अच्छी खासी हम्म थी। और अपने अर्जेंटीना में उतने लंबे खिलाड़ी नहीं है। तो जितने भी हम्म प्लेयर्स हैं, जैसे मेसी है, मेसी 5'7" है, अकूनिया है, वो भी उसी हम्म उसी हाइट का है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 6 फुट 7 फुट का बंदा हो जो मतलब ब्लॉक कर ले, जैसे वैन डाइक है, वैन डाइक ऐसा कोई डिफेंडर नहीं है। तो ये था हम्म कि इवन दो फिजिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा बढ़िया थी, बट टेक्निकली और मतलब जीतने का जुनून हो वो अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा था, इस वजह से जीती। कर आई गेस एक बार हुई थी कि जो लेफ्ट बैक था ऑस्ट्रेलिया का, हम्म उसने क्या हम्म किया था, एक फाउल किया था जब मेसी इधर साइड में उसको बॉल डिफेंड करते ले गया, तो उसकी टी शर्ट खींची थी उसने, तो मेसी उस पर गुस्सा हुआ था। हम्म, उसके 5 मिनट बाद गोल पड़ा था ये वाला। सो अच्छा। हम मेरे मन में चल रहा था कि हाँ हाँ उसको अब गुस्सा दिलाओगे तो गोल नहीं मारेगा वो उससे कपड़े और उसी वो के बाद ऐसा ही। बंदा है, ज्यादा गुस्सा होता नहीं, जल्दी ज्यादा गुस्सा नहीं होता। लेकिन अगर नहीं गुस्सा हो गया तो वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप उस दिन के लिए आपकी छुट्टी हो चुकी है। या तो बाद कुछ हैट्रिक मारेगा या फ्री किक मारेगा। हाँ, आई थिंक। ये और उसके बाद आई थिंक अकूना जो प्लेयर है, आई थिंक लेफ्ट बैक के लिए खेल रहा था, लेफ्ट बैक या विंग पे खेल रहा था। तो आई थिंक उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। आई थिंक अल्वारेज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इस टूर्नामेंट में। डी मारिया ने सऊदी अरेबिया के गेम बहुत अच्छा खेला, फिर फ्रांस के गेम बहुत अच्छा खेला। एमी मार्टिनेज ने गजब की, आई थिंक, जो क्रूशियल मोमेंट्स पे जो गोल कीपिंग है, मतलब चाहे वो पेनल्टी शूट आउट में शॉट्स बचाना हो या फिर क्रूशियल मोमेंट पे सेव करना, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा खेला। डिबाला ने अपना आई थिंक रोल प्ले किया, उसको ज्यादा चांस नहीं मिला, बट एंड में हम्म, आकर उसने एक पेनल्टी मारी थी फाइनल में। आई थिंक ये ग्रुप एफर्ट था। डी पॉल ने भले ही भाई अपना काम किया मेसी के बॉडीगार्ड वाला, बट आई थिंक हाँ ऐसा कोई बॉडीगार्ड को बार्सिलोना या पीएसजी में मिलता तो शायद और अच्छा खेलता हो। मे भी हाँ। तो अब आई थिंक नीदरलैंड से जो गेम था, आई थिंक नीदरलैंड से हम लोग को याद है 2014 के सेमीफाइनल में जब पेनल्टी हाँ शूटआउट में जीते थे। रॉबिन की टीम थी वो, और यू नो वेस्ले स्नाइडर की टीम थी। वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट नीदरलैंड्स की टीम थी। और इस बार भी आई थिंक वैन डाइक और फ्रैंकी डी यॉन्ग और आई थिंक कोडी, जो कोडी नाम का उनका स्ट्राइकर था, वान गाल का मतलब काफी अच्छा कोच है उनके पास। तो आई थिंक, और हम्म, वो मैच ऐसा था जो इतना ज्यादा आई थिंक गुस्सा था। आई थिंक जो रेफरी था माथियो लोहास, आई थिंक उसको हम लोगों ने काफी बार ला लीगा में भी रेफरिंग करते हुए देखा है। और वो ऐसा करेक्ट। रेफरी है जो दिखाना चाहता है कि हाँ मैं इंचार्ज हूँ, हम्म, चाहे कोई भी हो मैं इंचार्ज हूँ। आई थिंक येलो कार्ड की उसने बारिश कर दी थी उस मैच में। काफी बहुत मतलब रुका गेम, फिर चला, फिर बहुत आई थिंक रुका गेम। आई थिंक उस आई थिंक 2-0 से अर्जेंटीना आ गई थी। फिर हाँ वेगहॉर्स्ट को अर्जेंटीना, फिर नीदरलैंड के कोच ने बोगो वेगहॉर्स्ट पे भेजा कि कुछ करो भाई जाकर। आई थिंक लेकिन, और उसने आई थिंक 2 गोल करके बचा लिया ना, 90+11 मिनट या 90+10 मिनट में गोल हुआ था दूसरा। 90 प्लस तो आई 11 पे हुआ थिंक था। 90+11, लिटरली द लास्ट किक ऑफ द गेम एंड दे इक्वलाइज। आई थिंक उस हम्म, मैच में मेसी ने आई थिंक फिर से एक पेनल्टी मारी थी। एक करेक्ट पेनल्टी हाँ, मारी थी उसने। एक तो आई पेनल्टी मारी थिंक थी। हाँ, तो आई थिंक वो मैच भी बहुत ज्यादा, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गेम्स एट द वर्ल्ड कप। टेम्पल्स क्लियर हो गए थे। आई थिंक मेसी को ज्यादा देखते नहीं हम लोग, गुस्सा करते हुए जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन वो भी फिर लास्ट में जाकर वैन हाल को दिखा रहा था आई थिंक। तो आई हाँ भाई अब थिंक हाँ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट गेम? क्या इमोशंस थे उस गेम के दौरान? लग रहा था कि यार क्वार्टर फाइनल है, 2 मैच और हैं बस, ये मैच जीत जाए उसके बाद देखा जाएगा। क्या लग रहा था 2-0 पे क्या फील हुआ, 2-2 पे क्या फील हुआ, और पेनल्टी शूट आउट के टाइम पे क्या फील था? आई गेस सबसे पहली चीज तो ये कि जो फीलिंग थी कि मैच की कि किसी भी इससे जीत जाएंगे, इससे आसानी से जीत जाएंगे, या इससे थोड़ा मुश्किल होगा जीतना, ऐसा कुछ नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि ये एक पूरी टीम है, क्योंकि पोलैंड के बाद जो जिसने टीम स्पिरिट शो किया था, तो अब जब नेदरलैंड से मैच था तो ऐसा लग रहा था कि एक इवनली मैच कॉन्टेस्ट है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास लियोनेल मेसी है तो उनके पास वैन डाइक है, जो कि काफी अच्छा हम्म डिफेंडर है। सो उनके प्लेयर्स भी थे, और फ्रैंकी डिजोंग तो ऑब्वियसली एक अच्छा मिडफील्डर था उनके पास। मेरे हिसाब से मुझे तो ये लग रहा था कि यार ये एक मैच ऐसा है जो कुछ भी हो सकता है। हाँ मोलिना का ही गोल था, मोलिना का गोल था। हम्म और हम्म। मेसी मेसी का असिस्ट था। अच्छा हाँ, वो तो मेसी का आइकॉनिक पास जो था, नो लुक पास जो उसने दिया था।
हाँ, इतना हाँ, हाँ, प्यारा एकदम। पास है। सो वो पहला गोल था। हम्म, सेकंड गोल जो था वो मेसी की पेनल्टी थी, तो उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ यार अब तो 2-0 हो गया है, अब कर लेंगे, अब जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट जब फर्स्ट गोल पड़ा नेदरलैंड्स का, तब मेरे को डर लग रहा था कि यार ये कहीं फिर से वो गड़बड़ ना करें और ये लोग 2 गोल ना खा लें और फिर ये दिक्कत हो जाएगा। तो वो इमोशंस को क्या कहें, मतलब डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि मैच बहुत अच्छा चल रहा था। और ऊपर से हम कभी मेसी को वो देखते नहीं है, मतलब कभी भी लड़ाई करते हैं या फालतू बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं, मतलब एग्रेसिव नहीं होता है वो इज लाइक अ जेंटलमैन। बट इस मैच में वो एग्रेसिव भी था, वो गेम्स, वो अपना गुस्सा भी दिखा रहा था, वो अपना गेम खेल रहा था। एंड ये उसका जो रेज है, जो गुस्सा है, मतलब वो किसी का गलत बात नहीं सुनता है, अगर जो भी चीज को जो भी दिखाना होता है वो अपने मैच में दिखाता है। तो आई थिंक वो जस्टिफाइड था, वो जो गेस्चर उसने किया। और जो जब रिपोर्टर जब बात करने आ रहा था तो उसने वो डांट के भगा दिया उस प्लेयर को कि कैमरा वो बसा। सो वो चीज तो justified था, वो आई गेस एक एक वो हमें मिल गया कि जैसे अजलातान हुआ और रोनाल्डो हुआ, या हम्म, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ स्वैग वाला मूव ले आते हैं कि मतलब अगर किसी को दिखाना हो कि या डांटना डपटना हो तो इन लोग का स्लैंग ले आओ। बट अब हमारे पास एक स्लैंग है मेसी का, जो बेस्ट है अभी तक का फुटबॉल में, जो अब हम लोग बोल जो सकते कि हैं हम किसी भी रोनाल्डो फैन को कह सकते हैं, क्योंकि जब घर बोबोज ही रहते हैं मतलब। हाँ, आई थिंक एक जो चीजें जो अच्छी साबित हुई इससे, आई थिंक पहला जो अर्जेंटीना के जो फैंस है वो हमेशा कहते हैं ओ ही इज नॉट मैराडोना। मैराडोना ने लीड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और उसको काफी एक्सप्रेसिव थे और काफी अपने टीम प्लेयर्स को सपोर्ट करते थे। तो आई थिंक इस मैच में हमने थोड़ी सी उस अर्जेंटीना ब्रांड ऑफ एंगर की झलक देखी, वेयर ही वाज हाँ, आउट देयर एंड ही वाज लाइक, this is my team and I'm the captain of this team, and if you want to get through to my team, you have to go through me. और आई थिंक दूसरी बात, आई थिंक जो फर्स्ट वो पास दिया था, जो प्यारा सा असिस्ट दिया था, आई थिंक ये बात हम मेसी और रोनाल्डो के कंपैरिजन में काफी बार हम लोग भूल जाते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोल स्कोरिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोल स्कोरिंग, it's about that beautiful moment that he created out of nowhere, that beautiful pass which changed the complexion of the game. And it's not like you हर एक गेम में एक बार या दो बार ही प्रोड्यूस करता है। चाहे आप उसका वर्स्ट गेम भी उठा लीजिए, उसमें भी वो कम से कम 3 से 4 मोमेंट्स इस तरह के प्रोड्यूस करता है। अब भले ही वो स्ट्राइकर कन्वर्ट ना कर पाए, लेकिन अगर वो गोल नहीं कर रहा तो ही असिस्टिंग, अगर वो असिस्ट नहीं कर रहा तो वो कोई प्यारा सा प्यार पास देकर किसी दूसरे को असिस्ट करने का मौका दे रहा है। अगर वो असिस्ट नहीं कर रहा है तो प्यारी सी ड्रिबल बनाकर अपने टीम प्लेयर को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो ड्रिबल नहीं कर रहा तो शांति से जब टीम अटैक कर रही है तो किनारे में अपना खड़ा होकर देख रहा है आराम से, क्या चल रहा है भाई, कब आएगी बॉल हमारे पास, हम ये थोड़ा करतब दिखाएं। आई थिंक ये दो चीजें इस मैच से बिल्कुल, और आई थिंक इस मैच में हम लोग को एक टीम स्पिरिट देखने को मिली, एक जेन्युइन टीम स्पिरिट कि हम्म, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, हाँ, और हम उसके लिए जान देने को भी तैयार है, चाहे कुछ भी हो। एक ऐसा लग रहा था कि ये टीम एक एक का एक ही मिशन है, मोर देन अर्जेंटीना को जिताने से इनको मेसी को जिताना है। आई थिंक वो डेफिनेटली इस मैच में लग रहा था। ना केवल हर एक प्लेयर को हम लोग देख रहे थे, चाहे वो फिजिकल अटैकिंग हो, चाहे मेसी को अगर कोई कुछ कह रहा था या कुछ को धक्का दे रहा था, तो आई थिंक पूरी टीम इकट्ठा हो जा रही थी। आई थिंक ये एक ऐसा मैच था, आई थिंक जहां लग रहा था कि नहीं यार, एक अर्जेंटीना की टीम बहुत साल बाद हमने देखी है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, जेनेटी और बैटिस्टूटा और हिगुएन एगुएरो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए, अर्जेंटीना में एक से एक बड़े प्लेयर्स आए। बट ये एक ऐसी टीम थी जहाँ पे मोर देन प्लेयर्स इट वॉज प्लेइंग एज अ टीम, एंड इट वॉज प्लेइंग फॉर द कैप्टन, their Messiah, the greatest player the world has ever seen, and they were playing with one mission in mind, that they have to make the greatest player of the world win the greatest वर्ल्ड prize of the game. It कप। was brilliant. What do you एंड think? आई गेस, हाँ आई गेस मेसी ने भी जब जब उसने वो जो सब्स्टिट्यूट बैठे हुए थे तो एक प्लेयर ने कस के बॉल उनकी तरफ मारवा रही थी, तो वैन डाइक ने उसको धक्का दे दिया था कि कैसे ऐसे ऐसे कैसे कैसे कर रहा है तू। तो आई थिंक मेसी भी आया था डिफेंड करने। और अगर तुमने देखा होगा हाइलाइट्स में, मेसी ने वैन डाइक के यहाँ पे हाथ रखा और उसको नीचे खींच रहा था, और वो नीचे हो रहा था कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और आई गेस वैन डाइक अपने बंदों को रोक भी रहा था कि ठीक है मेसी से ज्यादा फालतू मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। तो आई गेस ये चीज जो है ये बहुत बड़ी चीज है कि आप 7 फुट का लौंडा, वो भले जितनी भी हाइट हो बट वो लगता तो पेड़ ही है एक तरह से, वो बंदा जो है इस बंदे से
सिर्फ उसके औहदे की वजह से इतना डर रहा है। तो और ऑब्वियसली मतलब मेसी यार, मेसी इज लाइक, तुम फुटबॉल में हो तो मेसी को फेस करना ही एक जो है, उसको रोक नहीं सकते तुम, तो उसकी रिस्पेक्ट अपने आप ही आ जाती है। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब मेसी को तो डिफेंड कर ही रहते हैं अर्जेंटीना वाले, बट मेसी भी अपने टीम प्लेयर्स को जितने भी हैं सबका अपना एक तरह से उसने सब वो अपना सपोर्ट दे रहा था कि नहीं, मैं इस टीम के लिए हूँ, तुम मेरी टीम को कुछ भी नहीं कह सकते। So that was one आई great thing. थिंक तो आई थिंक फ्रैंकी डियोंग आई थिंक और वर्जिल वैन डाइक आई थिंक दोनों ने कहा था कि मेसी इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम और आई थिंक ये क्वेश्चन हुआ था कि हाउ आर यू प्लानिंग टू स्टॉप लियो मेसी एंड दे वर लाइक I don't know, what can you say? Virgil van Dijk ने बोला था, he's chilling somewhere, on the left when we are attacking. So you can't man mark him because एक आदमी तो आपका फिर उसी में चला गया और उसको वो एक ड्रिबल या फिर एक क्विक मूव में वो उसको कर सकता था. I think it was a game where you could see that yes, Virgil van Dijk is one of the best defenders. He's the captain of his team. But even when I think एक एमी मार्टिनेज जो उनका गोलकीपर था, आई थिंक उसने हम्म, टूर्नामेंट से पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि व्हेन मेसी हम्म। स्पीक्स इवन द अर्जेंटीना ऑफ द पीएम विल बी लाइक क्या क्या बोले भाई. सब रुक आई जाते थिंक हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो सब मैनेजर हो, सब रुक जाते हैं। आई थिंक मोर देन दैट आई थिंक ऑपोजिशन प्लेयर आप वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं आप अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं बट उस टाइम में भी आपके अंदर इतनी रिस्पेक्ट है उस बंदे के लिए कि नहीं यार दिस इज द गाय हु हैज डन सो मच फॉर द फुटबॉल इफ ही इज सेइंग समथिंग और ही इज डूइंग समथिंग इवन इफ ही इज डूइंग लाइक दिस मुझे सुनना है ये क्या बोल रहे हो, क्या क्या दिक्कत है आई थिंक. और फ्रैंकी डियोंग आई थिंक काफी 3-4 साल मतलब 2-3 साल तो खेला भी मेसी के साथ बिफोर ट्वेंटी मेसी ट्वेंटी चला गया नाइनटीन था. 2 साल हाँ खेला है। 2019 में 2 साल खेला. हाँ मेसी के साथ ऐसे एक सेशन भी आप खेल लिए तो आपको पता है कि यू आर टॉकिंग टू समवन ऑफ नॉट दिस प्लैनेट ही इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. तो आई हम्म, थिंक उसके बाद आई थिंक जो सेमीफाइनल था we हम्म, were all expecting Argentina versus Brazil Copa America final. The clash of the two probably the greatest South American sides. Samba versus whatever Argentina players were doing. It was Samba versus salsa. I don't know. Maybe शायद अर्जेंटीना वाले करते हो. I think वर्ल्ड कप दिन के बाद तो सब हर तरह के डांस कर रहे थे. मैंने वहाँ पे किसी को भांगड़ा करते हुए भी देखा. आई थिंक एक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मेसी वर्सेस नेमार ब्राजील हम्म, वर्सेस अर्जेंटीना. यू नो अर्जेंट और आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपसेट जब क्रोएशिया ने ब्राजील को हराया एंड वी वर ऑल correct. एक्सपेक्टिंग कि वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील आई डोंट नो लास्ट कब हुआ था मतलब मैंने तो अभी नहीं देखा. आई थिंक वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इट वाज गोइंग टू बी अ greatest, one of the most anticipated games in the World Cup. And suddenly, you're gone. हाँ, Brazil is going home. Enough हार, dancing. करेक्ट। मेरे को याद है मैंने ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया देखा था क्योंकि एक्चुअली मैं चाह रहा था कि नेमार आए और वो खेले, बिकॉज नेमार इज लाइक द अनक्राउंड किंग, राइट। और एक शायद मैंने ये कहीं मीम पे भी देखा है कि द प्रिंस हु नेवर बिकेम अ किंग। सो नेमार के Hmm. साथ ये हो जाता है कि नेमार ऑब्वियसली एमएसएन वी ऑल नो है ना, बारसा का। सो नेमार के साथ एक 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 जुड़ा तो हुआ ही है, एक कनेक्शन है कि हाँ नेमार जो था उस वो बारसा के लिए भी खेला है, ब्राजील के लिए खेला है और एक अच्छा प्लेयर है, एंड ही इज सो सच अ गुड फ्रेंड विद मेसी। सो उसके लिए था कि हाँ इन लोग को टक्कर कराओ एक बार, इनको एक बार एक सामने जो है एक गेम खेलना चाहिए और एक बार हो जाए कि हाँ ठीक है ब्राजील है कि अर्जेंटीना है, हु इज द अपर वन। बट क्रोएशिया के साथ जो मैच हुआ और ब्राजील हार गई, आई गेस वो बहुत ही बड़ा अपसेट था। मेरे लिए भी कहूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नेमार का गोल तो तुमको याद ही है कि उसने जो जो ड्रिबल था उसका, Super. Magic. वो मतलब क्या ही था वो। और वो उसने बहुत ही आराम से मतलब करके गोल, और वो गोल भी इतना बढ़िया था, मतलब उसको कोई कीपर रोक भी नहीं सकता, इतना पावरफुल शॉट था वो। बट अब देखो मैच हार गया तो लोग कई बातें कई सारी चीजें कहते हैं, बट मेरे को ये लगता है कि जो पेनल्टी स्टार्ट हुआ तो नेमार को फर्स्ट जाना चाहिए था, क्योंकि उसे एक टीम का और Hmm. रिदम सेट करना चाहिए था, जैसे एम्बाप्पे ने किया था फ्रांस के फाइनल में। उसी तरह नेमार को करना चाहिए, क्योंकि ये लोग लाइमलाइट लेने के चक्कर में कि मैं फिफ्थ पेनल्टी लूंगा फिर मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, वो अच्छा नहीं होता।
और रॉड्रिगो को जो फर्स्ट पेनल्टी देने का डिसीजन था वो आई गेस रॉन्ग था। वो इसलिए कि तुमको याद है जो लास्ट अभी एल क्लासिको हुआ था जिसमें आई थिंक 2-0 से हारे थे, राइट? नहीं, 3-0 से हारे थे। तो रॉड्रिगो ने पेनाल्टी ली थी लास्ट मिनट पे, 90th मिनट पे उसको पेनल्टी मिल गई थी। तो वो उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, बारसा के अगेंस्ट स्कोर कर दिया तो रॉड्रिगो वो भी कर देगा, लड़का बहुत आगे जाएगा तो ये विनीशियस जूनियर को भी टक्कर दे सकता है, ये सब ऐसा बोल रहे थे। बट रॉड्रिगो इज नॉट एन एक्सपीरियंस प्लेयर, सो वो जो प्रेशर होता है उस टाइम पे, ऑब्वियसली हमने देखा है जब मेसी जैसा प्लेयर पेनल्टी मिस कर सकता है, तो रॉड्रिगो तो कुछ भी नहीं है। एंड उसने पेनल्टी मिस कर दी, और वो चीज एक वो दिख रहा था कि एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर को सबसे पहली पेनल्टी लेने भेजना इज नॉट अ गुड डिसीजन। जो बोलते हैं ना डायलॉग कि पता है हम मैच कहाँ हारे तो आई गेस ब्राजील वाले वही हारे। और नेमार को आई गेस अब नेमार के पास शायद एक और चांस है वर्ल्ड कप खेलने का, तो मे बी ही विल डू समथिंग अमेजिंग। मे बी विनीशियस जूनियर थोड़ा सा और यू नो क्या 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 कर सकते हैं, पॉलिश हो जाएगा या और उसकी स्किल्स बढ़ डेवलप हो जाएंगी। गया। हाँ, डेवलप हो जाएंगी। रफीनिया है वो बढ़िया हो जाएगा, और एक दो डिफेंडर्स अगर और हो सकता है उखर निभर के आए कि निखर के आए कि जो है एटलीस्ट वो ब्राजील वो वाली टीम हो जाएगी जो कम्पीट कर सके एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल। तो मे बी जो जो भी है जैसा भी है, बट क्रोएशिया का भी है। Brazil, I think, will do a separate section because I think Neymar, you said this. He's the guy who was in the shadows of Messi and Suarez in Barcelona. He came to PSG. He's in the shadow of Mbappe, and then हम्म, the king came, and the prince stayed the prince. Messi came, and he is the guy. I think he's probably yes. मतलब उसका काफी नाम है उसके skills की वजह से, but I still think he is one of the most underrated players. He is someone हम्म, who is not उसको ज्यादा टेंशन नहीं मिलता है, but he is one of the most technical players I have seen. So I think semi-final it was Croatia versus Argentina, Luka Modric versus look Lionel at Messi, Real Madrid versus in a way Barcelona you can say. And I think वो या 4 साल पहले की मेमोरी हमारे दिमाग में ताजी हो गई थी 3-0 जो लुका मॉड्रिच ने एक ब्लाइंडर गजब का गोल मारा था, आई थिंक सेकंड गोल जो मारा था। ये फिर से लग रहा था कि यार क्रोएशिया एक ऐसी टीम तो नहीं है। मुझे सच बताऊं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मुझे लगा ब्राजील आएगी, तो मुझे उतना डर नहीं था कि चलो चलो इससे तो अब खेलेंगे, ब्राजील है। लेकिन क्रोएशिया थोड़ी अंडररेटेड टीम थी, तो मुझे लगा यार कहीं ये लोग फिर से मैच ले गए पेनल्टी शूट आउट तक तो मुश्किल हो जाएगा। एंड आई थिंक वो लुका मॉड्रिच, आई थिंक व्हाट अ ग्रेट प्लेयर। आई थिंक सबसे पहले हमें उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। यू नो Xavi, Iniesta, great players never won the Ballon d'Or, and he is the Modric guy won the ballot. who broke the Messi and Ronaldo hegemony जो एक चल रही थी काफी साल से कि नहीं जो मेसी रोनाल्डो डोमिनेंस था मेसी रोनाल्डो। उसको रोका उसने। हम्म। तो मॉड्रिच आई थिंक बहुत एंड ही अच्छा, अगर उसका गेम देखें सो ही वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। मतलब ऐसा नहीं कोई मिडफील्ड है तो वो तनी थोड़ा थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, बस इतना ही खेलेगा, पूरा नहीं खेलेगा। वो अटैक भी कर रहा है, वो डिफेंस भी कर रहा है, वो पासेस भी दे रहा है। सो ही वाज लाइक एक, अगर हम मेसी और रोनाल्डो को एक में मान लें कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मॉड्रिच आई थिंक इस जमाने का सबसे बेस्ट मिडफील्डर है, द कंप्लीट प्लेयर आई कैन से। और क्रोएशिया जिस हिसाब से खेल रहा है, इधर क्रोएशिया जीत रही है, इधर फ्रांस जीत रही है, तो हमें लग रहा था कि कहीं इन दोनों का फाइनल ना फिर से हो जाए। सो वो एक प्रेशर बहुत ज्यादा था कि क्रोएशिया के अगेंस्ट में जीतना इन लोग को जो बहुत जरूरी भी था ऑब्वियसली, क्योंकि सेमीफाइनल था। बट उनका गेम भी इतना अच्छा था कि ऐसा डर था कि कहीं ये लोग हरा के आगे ना पहुंच जाए। बट अर्जेंटीना वॉन, वी वॉन, एंड दैट वाज दैट वाज अ वेरी गुड मैच। बट हाँ, अब ऑब्वियसली मेसी ने उसमें एक गोल मारा था, एंड वो गोल जो है अगेन आई गेस पेनल्टी। पेनल्टी, राइट? हाँ। पेनल्टी थी, हाँ। और उसके बाद से दो गोल पड़े थे तो अल्वारेज के, तो वो अच्छा था। मतलब मैच आई गेस इन द एंड इट वाज अ प्रीटी इवन मैच, बट अर्जेंटीना केम ऑन टॉप बिकॉज आई थिंक अगेन मेसी के पास पेनल्टी थी सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, यू वर लाइक यू नो ये मार दे कम से कम क्रिटिसिज्म तो नहीं मिलेगा, भले ही हार है लेकिन आई थिंक अल्वारेस का जो दूसरा गोल था, आई थिंक वो हाफ लाइन से दौड़ते 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 आई थिंक एक दो लकी भी हो गया, एक बार डिफ्लेक्ट होकर उसके पास आ गई, फिर डिफ्लेक्ट होकर किसी के पास आ गई। लेकिन आई थिंक उसके बाद जो तीसरा गोल था उसमें मेसी मैच का गेम,
उसके पास बंदे के पास हाफ लाइन पे बॉल थी, उसके हम्म पीछे मास्क लगाया होता है एक प्लेयर, क्या नाम था उसका, ग्वार्डियोल आई थिंक। और आई हाँ थिंक फिर से वही अपना ट्रिक्स दिखाते हुए वहां तक ले गया एकदम, डी तक, डी के अंदर तक ले गया, थोड़ा रुका, फिर अंदर चला गया। आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 प्लेयर्स सोच रहे होंगे यार इतनी बढ़िया रन है, शूट कर देता हूँ देखा जाएगा, अगर नहीं भी हारेंगे कोई नहीं, अपने ने पूरा किया। बट एक प्यारा सा पास अल्वारेस को, और टैप इन, सिंपल टैप इन फॉर अल्वारेस, यू नो। बट बोलो। एक्चुअली इस बारे में मेरे को थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी आता है अल्वारेस के लिए। क्यों? क्योंकि हम्म फिनिश भी करना, जैसे कभी कभी तुम देखे होगे बार्सिलोना के मैचेस में सुआरेस जो था वो कभी कभी इस तरह के शॉट्स मिस कर देता था। ऐसा ऐसा हम लोग हम्म बोलते थे यार इसको तो हलवा बना के दिया है, अब भी गोल नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्यों गोल्डन बूट जीत रहा है ये। बट अल्वारेस उस सिचुएशन में हम्म वहां पे द राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस कह सकते हैं, वो उसने वो फिनिश कर दिया, हम्म और वो फिनिश इतना अच्छा था यार, मेरे को तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी भी। तो वो फिनिश यार एल्वारेस को करना, उसकी ऑब्वियसली एक टैप इन था, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल दैट एल्वारेस प्रेशर, कैन। प्रेशर मोमेंट, World प्रेशर मोमेंट। semi-final of the World Cup. You can finish the game off. That's it. They will never be able to come back. I think I think और कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्राइकर्स मेसी का प्ले देख के इतना मिसमराइज रहते हैं कि जब बॉल उनके पास आती है तो वो कुछ कर नहीं पाते। सुआरेस के साथ ऐसा हुआ है, हिगुएन के साथ हुआ है, गुएरो के साथ हुआ है। बट आई थिंक बहुत ही जितना सिंपल प्ले था उसकी हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रशंसा और सराहना करनी होगी कि मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। और असिस्ट के बारे में कुछ, आई थिंक वो एक एंगल हम लोगों ने देखा था, ट्विटर पे आया था, जो आई थिंक किसी हाँ क्राउड ने रिकॉर्ड किया था मेसी के असिस्ट अरे का। और इतना इतना प्यारा वो रन थी। और एक ही डिफेंडर था, डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत अच्छी डिफेंडिंग की थी पूरे गेम में। बट व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग unless you tackle him and then he'll get a penalty and he'll score. Simple. उसके बारे में, उस डिफेंडर के बारे में ये भी आ रहा था कि जो भी उसके कोच ने बोला था कि यार हम लोग जो भी कर सकते थे, उस डिफेंडर ने जो भी वो कर सकता था उसने किया, बट अब मेसी है तुम्हारे हम्म सामने, तो यू विल फेस, यू विल हैव दैट डिसएडवांटेज कि मेसी इज अ ड्रिबलिंग स्पेशलिस्ट एंड ही हाँ, नोज हाउ टू ये था ही नोज हाउ टू प्ले। टेक्स्ट बुक परफेक्ट डिफेंडिंग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, ही वॉज कुछ भी गलत परफेक्ट। वो प्लेयर के पीठ पे था हमेशा, स्पेस नहीं देना चाह रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं। नहीं, he was just outclassed, that's why. Simple. Other than that, He was you just know, outclassed by a better player. And there is no shame in being outclassed by Lionel Messi. I think it's an honor. So I think even मैच के बाद भी I think वो बोला था कि I tried my everything, but at the end of the day you cannot compete with the best. और आई थिंक 3-0 की विन, एक तरह से रिवेंज पूरा हो गया। 3-0 से हम लोग हारे थे, अर्जेंटीना हारी थी सॉरी। आई थिंक 3-0 से जीत गए। आई थिंक एमी मार्टिनेज का ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन आई थिंक क्लीन शीट रखना क्लीन अर्जेंटीना के शीट लिए सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। बिकॉज अगर हम लोग देखा जाए तो ह्यूगो लोरिस ने सिर्फ एक क्लीन शीट रखी है पूरे वर्ल्ड कप में, एमी ने हम्म 3। तो ये डिफरेंस तो है, हम्म इसलिए कीपर का काम तो होता ही है, बट और टीम का बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं, और इस मैच में स्टार प्लेयर गए तो मेसी ही है। बट हाँ, वो क्लीन शीट रखना भी इट्स अ बिग टास्क। सो आई थिंक या क्रोएशिया के लिए रेस्पेक्ट है, बट या वी गॉट द रिवेंज। एंड दे गॉट द ब्रॉन्ज मेडल, तो मतलब अच्छा है, उन लोग के लिए भी अच्छा है। मिलना मॉडरिच ही वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स, शायद उसका लास्ट मैच, आई थिंक दोनों ने, एक स्टैट आया था कि दोनों ने अपना डेब्यू एक ही मैच, पहले मैच एक ही मैच में किया था, मेसी और मॉडरिच ने। 16 साल बाद दे आर प्लेइंग इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। आई थिंक दोनों ही एक तरह से देखें तो सेम टाइप के ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों ज्यादा बात करने में यकीन रखते, दोनों टीम प्लेयर हैं, लेकिन दोनों मजिशियन। मॉडरिच कह नहीं सकते कि कितना उसने किया है, मॉडरिच, क्रूज और कैसेमीरा का जो मिडफील्ड है, उसने कितने चैंपियंस लीग जिताए हैं रियल मैड्रिड को। तो अब आते हैं हम लोग फाइनल, फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, फाइनल फाइनल ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप। You have हाँ, the greatest player in the world versus probably going to be the greatest player in the world. Lionel Messi versus Kylian Mbappe. अगर अगर एम्बाप्पे 10 बैलन डॉर जीत जाए अगले 10 साल में तो शायद कह सकते हैं, बट अदरवाइज ही इज मुझे नहीं लगता। But वो तो नहीं। the prince that was promised, the prince that is promised, in a way, Mbappe, PSG, teammates दोनों, कतर, दोनों का एक बहुत, क्योंकि पीएसजी कतर कतर वालों ही ओन करते हैं पीएसजी को। तो एक एंटिसिपेशन था मैच से पहले कि कौन जीतेगा। फ्रांस जो कि 2018 में जीत चुका था, मतलब लग रहा था कि दे आर गोइंग टू विन इट, इट्स
एम्बाप्पे 18 ईयर्स की एज में जब उसने जो किया था 2022 वर्ल्ड कप में, ही वाज आई थिंक जॉइंट टॉप स्कोरर अलोंग विद मेसी फाइनल तक। और आई थिंक फ्रांस की टीम इतनी ज्यादा डेप्थ, पोग्बा नहीं था, कांटे नहीं था, बेंजेमा फर्स्ट मैच के पहले चोटिल हो गया था, उसके बाद भी इतनी अच्छी टीम थी। और एक न्यूज आई थी वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कि बेंजेमा इज राइट, वो सही हो गया है और वो खेल सकता है, क्योंकि उसको ऑफिशियली बाहर नहीं किया गया था। तो बट फ्रांस की टीम के बारे में कुछ क्या लग रहा था? फ्रांस की टीम इतनी आसानी से तो हारने वाली नहीं थी अर्जेंटीना से। राइट, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे हम अर्जेंटीना का बात करें अगर, तो अर्जेंटीना हमेशा मेसी पे डिपेंडेंट थी। बट जब हम वर्ल्ड कप देख रहे थे, जब मैं पूरे वर्ल्ड कप का अगर मैं एनालिसिस बताऊं, तो ऐसा था कि अर्जेंटीना सिर्फ मेसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इट्स लाइक एन अर्जेंटीना, अ होल नेशनल टीम हु इज प्लेइंग एज अ सिंगल यूनिट। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेसी है और बाकी सब बस अरे गहरे हैं, नहीं। ऐसा लग रहा था कि पूरा टीम खेल रही है। और फ्रांस तो गेरे एकदम, गेरे इज एक्चुअली अ प्लेयर ऑफ अर्जेंटीना। गेरे। हाँ हाँ हाँ, वो अरे उसका शायद उसने पेनल्टी ली थी, फोर्थ पेनल्टी थी उसकी सेमीफाइनल में, आई अच्छा गेस अच्छा। अच्छा अच्छा। 2014 वर्ल्ड कप। सो जब मैच गेरे। स्टार्ट, हाँ गेरे गेरे। अरे गेरे बोला ना तुमने, तो मैंने कहा हाँ, देयर इज अ प्लेयर नेम गेरे। हाँ। फ्रांस की टीम हाँ, के बारे में कुछ? फ्रांस की टीम यार बहुत ही अच्छा कंपटीशन दे रही थी, सबको हरा के आई थी फाइनल में। फाइनल और अपना जो कर्स होता है, जो वर्ल्ड कप का कर्स लोग बोलते हैं कि जो टीम जीतती है वर्ल्ड कप वो अगले वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। स्पेन के साथ हुआ, जर्मनी के साथ हुआ। तो ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, इटली। हाँ ये बाहर हो सकती है क्या, बट नहीं। फ्रांस ने अपना बेस्ट दिया। और आई गेस वो टीम ऐसी थी कि जो मतलब ऐसा प्लेयर डेम्बेले हो गया, जीरू हो गया, ये लोग थे, ये लोग काफी थ्रेट लग रहे थे। तो मुझे मुझे तो पर्सनली तो मेरी तो बैंड बजी हुई थी कि यार क्या ही होगा, मतलब क्या फ्रांस 2 बार वर्ल्ड कप लेके, मेरे मन में था कि एम्बाप्पे तू 2 बार वर्ल्ड कप लेके क्या करेगा, तेरी तो जिंदगी पड़ी हुई है अभी और मेसी को दे देना चाहिए। बट ऐसा नहीं था, फ्रांस अपना मतलब पूरा तैयार थी कि मैं, वो लोग थे कि हम लोग लड़ जाएंगे मर जाएंगे, हम लोग तो जीत के रहेंगे, अपना अपना वर्ल्ड कप टाइटल जो है रिटेन करेंगे। सो इट वाज अ बहुत प्रेशर भी था, टेंशन भी थी, और एक्साइटमेंट भी थी कि कैसा होगा वर्ल्ड कप। और आई थिंक ये वर्ल्ड कप अपने, मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मानूंगा, और आई थिंक हम सबको मानना चाहिए कि ऐसा तगड़ा वर्ल्ड कप हम देख पाए अपने अपनी जनरेशन में, और अपने जनरेशन के बेस्ट प्लेयर को उसमें खेलता देख पाए। क्योंकि 3-3 वर्ल्ड कप, मतलब 6 गोल एक वर्ल्ड कप फाइनल में पड़ना, इट्स अ बिग थिंग। और आई गेस ये, डेफिनेटली आई थिंक नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वर्ल्ड कप फाइनल बोरिंग, एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, फिर पेनल्टी शूट आउट में जाएगा। और आई थिंक तो मतलब लग रहा था, आई थिंक जब स्टार्टिंग के फर्स्ट 20 मिनट्स में अर्जेंटीना बहुत अच्छा खेल रही थी, आई थिंक दे डिजर्व जो उनको पेनल्टी मिली, मेसी ने जो गोल किया। आई थिंक वो डेफिनेटली उनके प्ले से लग रहा था, जिस तरह उनका मूवमेंट था, जो टैक्टिक्स थी। डी मारिया इंजर्ड था पहले मैच के बाद, खेला नहीं था, उसको लेफ्ट में स्कलोनी ले आया। आई थिंक वो एक अच्छा सरप्राइज मोमेंट था उनके लिए। तो आई थिंक जो 20 मिनट्स का पहले खेल था, आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव था अर्जेंटीना के लिए। और फ्रांस वाले ऐसे लग रहा था कि दे आर स्टिल ट्राइंग टू पेस पेस को एडजस्ट करने में उनको टाइम लग रहा था। तो आई थिंक एज पेनल्टी मिली उसको, सेमीफाइनल में पेनल्टी मिली, क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी मिली। आई थिंक वर्ल्ड कप, मतलब मैं सोच रहा था कि जब पेनल्टी ले रहा था वो, कि अगर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कोई मुझे बोला होता कि लियोनेल मेसी विल टेक अ पेनल्टी इन द वर्ल्ड कप फाइनल एंड ही कुड बी द वन टू मेक इट 1-0, आई वुड हैव सेड यार, मतलब क्या बात है, अगर ऐसा हो गया मजा आ जाए। आई थिंक वो मोमेंट था। लॉरिस गुड कीपर, कैप्टन ऑफ फ्रांस टीम, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ही कैन सेव। बट आई थिंक जो मेसी ने अपनी नई पेनल्टी की जो टेक्निक बनाई है, कि एंड टाइम तक वो गोलकीपर को देखता रहता है कि किस तरफ उसका मूवमेंट होगा, उसके बाद ही डिसाइड। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही डिसाइड करके जा रहा है कि मुझे किस किस तरफ मारनी है गोलकीपर के। आई थिंक जो फर्स्ट गोल था, इट वाज 1-0, Messi could have, potentially won the World Cup for Argentina. But, और I think the second play था, I remember कि अर्जेंटीना के हाफ में थी गोल, मेसी के पास आई, मेसी ने एक प्यारा सा मतलब टच दिया, और उसके पास गई, बॉल गई, आई थिंक क्या नाम था उसका, मैकेलिस्टर मैकेलिस्टर के सर, पास गई। और हाँ, और फिर उसने पास किया डी मारिया को, और बहुत ही प्यारी फिनिश, आई थिंक 2-0, गेम रैप्ड अप।
अर्जेंटीना आर गोइंग टू विन, अब कुछ नहीं हो सकता, हाफ टाइम हो चुका है, एंजल डी मारिया अन कह सकते हैं unsung hero of Argentina, Copa America finalissima, and finally he was wrapping it up. 45 minutes, half time, 2-0 Argentina. मैंने तुम्हें कॉल किया. I was like, look, we are winning, and you didn't pick up because तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे उस टाइम पे. बट यार उस समय लग रहा था कि नहीं यार तो जीत गए, एक गोल खाएंगे तब भी जीतेंगे. लेकिन हाँ अर्जेंटीना क्या कर सकते हैं, दे आर लाइक साउथ अफ्रीका, थोड़े चौक कर जाते हैं एंड टाइम पे. आई थिंक आई थिंक पेनल्टी वाज व्हेन इट वेंट 2-1, और फिर एम्बाप्पे का मैजिक गोल. आई थिंक इतनी प्यारी फिनिश थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो गोल करेगा, मुझे लगा शायद एक टच लेके बॉल आगे ले आके फिर शूट करे. गजब का शूट. क्या लग रहा था 2-0 पे हाफ टाइम पे, लग रहा था कि जीत गए, और फिर 2-2 पे क्या हुआ, मतलब क्या चला था मन में कि अब तो गए, अब तो लग रहा है हारेगी, क्या लग रहा था? सो ऐसा लग रहा था यार 2-0 है, अभी हाफ टाइम है और अभी तक एम्बाप्पे अपने पूरे उस फॉर्म में नहीं है जो जो एक्चुअली जिससे डर होता है, जो उसकी स्प्रिंट है. उसकी स्प्रिंट मतलब मुझे तो लगता है कभी कभी कि कुछ खाते कुछ अलग सा चूरन खिलाते हैं उसको कि तू दौड़ भाई, तू दौड़, हम तेरे को बॉल पास करेंगे. सो एम्बाप्पे की स्पीड अभी तक देखने को मिली नहीं थी पूरे फर्स्ट हाफ में. वो नॉर्मल प्लेयर था, नॉर्मल दौड़ रहा था वो, जैसे एक कोई भी एक अच्छा विंगर जो होता है वो दौड़ता है. बट उसका था कि अब मेरे को वही डर था कि हो सकता है कि ये एम्बाप्पे अभी फॉर्म में आए, हो सकता है ये प्रेशर में है एम्बाप्पे. बट 2-0 पे था कि नहीं, अभी रुके रहते हैं, अभी अभी थोड़ा सा शांत रहते हैं जब तक जीत नहीं जाता, जब तक 90th मिनट हो नहीं जाता. एंड आई गेस वही दो, आई थिंक 97 सेकंड्स, राइट, 97 सेकंड्स में दो गोल पड़े, एक एम्बाप्पे की पेनल्टी और 80 एम्बाप्पे 80 मिनट तक 2-0 था, और 81st मिनट पे 2-2. 2-2 था. तो 2-2 जब हुआ तब मेरे को डर लग रहा था कि अब 2-2 हो गया और एम्बाप्पे को कॉन्फिडेंस आ गया है गोल मारने का. सो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पैनिक कर जाएं, अर्जेंटीना का डिफेंस जो है क्रम्बल ना हो जाए. और वो चीज था कि वो 90 जब तक वो 90 मिनट ओवर नहीं हो गया तब तक वो डर पड़ा रहा. बट ये लोग अच्छा डिफेंड कर रहे थे, अटैक भी कर रहे थे, मतलब ऐसा था कि ये लोग नॉर्मली खेल रहे थे. जब 90 मिनट हो गया, आई गेस 2-2 पे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं 60-40 बोल सकते हैं कि फ्रांस की तरफ मेरा होता कि कहीं फ्रांस न जीत जाए, क्योंकि वो अब एम्बाप्पे मोमेंटम इज अ, था ना. हाँ, एम्बाप्पे ने एक सेट कर दिया था कि हाँ अभी हम यहाँ पे देखने नहीं आए हैं, तू वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है बट मैं भी कुछ कम नहीं हूँ. सो दैट वाज वन थिंग. हम्म. फिर आते हैं एक्स्ट्रा टाइम की बात करते हैं. तो एक्स्ट्रा टाइम में हम्म. तुम्हारे क्या थे, जब मेसी ने गोल मारा तो तुम क्या सोच रहे थे? यार पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई पास करो मेसी को, और उसने शूट लिया, लॉरिस के माथे पे लग गई बॉल और मेसी के पास गई, तो मेसी ने शूट किया और आई थिंक गोल के अंदर से उसने डिफ्लेक्ट किया. तो आई थिंक मेरा पहला था कि ऑफ साइड, कहीं ऑफ साइड तो नहीं है, क्योंकि हाँ, आई थिंक थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था उस टाइम पे ज्यादा कि था, ऑफ साइड हो सकता है. अभी लग रहा. हम्म. देखो ऑफ साइड नहीं था तो हम लोग को भी दिख रहा था यहाँ से कि वो गोल था, गोल के अंदर से इसने किया है, मतलब इतना ज्यादा अंदर था कि कोई डाउट भी नहीं कर सकता था कि वो गोल है. लेकिन वही एक डाउट था कि ऑफ साइड. आई थिंक जब गोली ने ऐसे दिखाया रेफरी ने तो उसी टाइम पे लग गया था गोल है. आई थिंक 3-2. उस टाइम पे भी लगा कि मेसी चलो विनिंग गोल कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, 113 मिनट हो गए हैं, 6-7 मिनट तो रोक ही लेंगे भाई, इतना भी नहीं रोक पाएंगे तो फिर मतलब हारना ही समझ लो. आई थिंक मेसी का गोल था, एक ऐसा गोल था जो उसने पेनल्टी से नहीं किया, एक थोड़ा मतलब कह सकते हैं अनलाइक मेसी गोल था, क्योंकि कभी उसको इतने पास से शूट करने का शायद मौका नहीं मिलता. और आई हम्म, थिंक कूल हेड उस टाइम पे, ही डिडंट पैनिक. वो इसमें नहीं आया, कई प्लेयर्स ऐसा सोच लेते हैं कि अरे ये तो ऑफ साइड है, अब क्या फायदा आगे खेलने से. उसने अपना काम किया, उसने शूट किया. आई थिंक सबसे पहले मेसी को पता चल गया था कि ये गोल है, सिंपल, वो दौड़ लिया था अपना. 3-2. मुझे लगा अब तो खत्म है यार, ये अब नहीं हो सकता, अब एम्बाप्पे हाँ, चाहे आ जाए, चाहे जिडान आ जाए, चाहे पेले आ जाए, चाहे मैराडोना आ जाए, अब तो नहीं होगा फ्रांस ये से. आ जाए अब तो नहीं हो सकता गोल, ऐसा लेकिन लगा. लेकिन बट भाई पेनल्टी. वो पेनल्टी एक्चुअली अगर उसका रिमाइंड देखें तो जो चाउमेनी प्लेयर था उसके हाथ से टच होके गई थी बॉल, बट रेफरी ने वो देखा नहीं. और फिर अच्छा. हाँ, क्योंकि हाँ ये यूट्यूब पे मैंने कई जगह हाइलाइट्स में देखा है. सो उसके हाथ से टच हुई बॉल बट किसी ने देखा नहीं, फिर एम्बाप्पे ने शूट लिया. जब उसने शूट लिया हम्म. तो वो अर्जेंटीना के प्लेयर के हैंड हो गया था, तो उससे पेनल्टी मिल गई. जब वो पेनल्टी मिली उसको तो मैंने माथा पकड़ लिया कि कहीं अब ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे लोग दो गोल खा जाएं और हम लोग धरे के धरे रह जाएं.
सो ये चीज एक हुआ था कि चलो ठीक है, एम्बाप्पे ने पेनल्टी मारी, और एक चीज तुमने देखा, जो दोनों पेनल्टी मारी उसने उसने लेफ्ट साइड में ही मारी थी, उसने दोनों पेनल्टी हम्म स्पॉट पे मारी थी। और आई गेस जब पेनल्टी हम्म शूट आउट हुआ तब भी उसने वहीं पे मारा था, तो थर्ड पेनल्टी भी सब तीनों तीनों उसने एक ही। पेनल्टी लेफ्ट पे थी। हाँ, सो जब ये गोल पड़ा, सो थर्ड जो सेकंड पेनल्टी पड़ी, उसके बाद से 3-3 हो गया था, तो उसके वो जो 5-6 मिनट थे, 117 पे मारा था, 117 मिनट पे, और 123 मिनट पे जो लास्ट अटैक आया था, तो ये जो 7-6 मिनट जो थे, ये आई थिंक मेरे लाइफ के सबसे टेंस्ड 6 मिनट रहे होंगे क्योंकि आई गेस हम सब के, आई थिंक तुम्हारा भी यही रहा होगा कि मतलब तुम्हारा क्या था कि तुमको कैसा लग रहा था अभी इस टाइम पे? यार जब 3-2 था मुझे लगा जीत गए। 3-3 हुआ तो मेरे मन में से एक ही थॉट आ रहा था, साला ये जो खत्म कब होगा। मतलब मुझे लगा था भाई यार ये मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है भाई, कितना वेट कराएगा मतलब। अच्छा, हमने तो उसकी बात ही नहीं की, एमी मार्टिनेज के सेव की। अरे वो तो कितना हाँ ही सच है। सेव था यार। सबसे पहले तो उसकी बात करते मतलब हैं। एक ये आई थिंक लॉन्ग बॉल ऐसे ही दे दी गई थी। और आई थिंक फ्रांस हम्म। का कोई नया प्लेयर था, कोलो लाउनी करके जो भी प्लेयर था। तो आई हाँ थिंक हाँ। और आई थिंक जैसा कि तुमने कहा शायद कोई एक्सपीरियंस प्लेयर रहता तो शायद एम्बाप्पे रहता तो शायद वो पुट अवे कर देता तुरंत, क्योंकि स्ट्रेट गोल था। गोलकीपर था, उसको चिप करता या फिर कुछ भी करता। बट हम्म। आई थिंक एमी मार्टिनेज कमिट द और कमिट द मैन। उसका गोल्डन आई थिंक गोल्डन ग्लव मिला है उसको, गोल्डन लेग मिलना चाहिए था क्योंकि उसका हाँ लेग आ गया सामने। और आई थिंक हाँ। जब मैं अभी देख रहा था उसके वीडियो देख रहा था, तो जैसे ही उसके पास आई कोलो के पास, तो फ्रांस के जो जितने भी सबs थे सब तुरंत आने लगे ग्राउंड पे कि अब तो जीत गए, अब तो जीत गए, 4-3 से जीत गए। बट आई थिंक वो जो पैर आई थिंक था उसका, क्या सेव सेव ऑफ द वर्ल्ड कप। आई गेस हाँ, सेव ऑफ द वर्ल्ड कप, बेस्ट सेव ऑफ द वर्ल्ड कप। क्योंकि वो टाइम पे अगर फ्रांस गोल मारती तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में खत्म वो था नहीं यार, कर। लास्ट किक थी, लास्ट किक थी। लास्ट किक थी वो, 10 सेकंड अधिक से अधिक मिलते हैं उन लोग को, या अधिक से 1 मिनट ले लो पूरा, बट उसमें वो गोल नहीं मार पाते, और फ्रांस की पूरी टीम जो है लेट जाती कि मेरी लास्ट पर से चले जाओ बट मैं गोल नहीं मारने दूंगी, ऐसा हो जाता पूरी टीम बोलती। सो आई गेस वो सेव, आई गेस कह सकते हैं कि अर्जेंटीना की तरफ से जो एमी मार्टिनेज ने जो सेव किया, वो सेव उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट सेव रहा होगा, और उस पूरे वर्ल्ड कप का बेस्ट सेव था, क्योंकि वो अगर नहीं रोक पाता, सो फ्रांस आज वर्ल्ड चैंपियन होती। और नाउ स्कोर कार्ड पर 4-3 रहता जो कि 2018 में रहा था फ्रांस और भी अर्जेंटीना। हाँ, और वो फोर्थ रिपीट होता, और फिर हमें पता है कि क्या क्या होता। मेसी को गालियां पड़ती, रोनाल्डो फैंस जो है शांत हो जाते कि चलो ठीक है, तो मेसी भी नहीं जीता, और पता नहीं क्या क्या होता, बट एनीवेज he saved it, and I think he, along with Messi, he was also one of the players who saved the day for Argentina. So he can also be MOTM second part, you can say, can be given to Emi Martinez. आई So थिंक 3-2 3-2. तो था, 3-3 हुआ। एंड एम्बाप्पे वाज लाइक नहीं यार मुझे तो फिर से जीतना है। हैट्रिक मार के मेसी से एक गोल आगे निकल गया। व्हाट वाज योर रिएक्शन जब 3-3 हो गया, गेम खत्म हो गया, पेनल्टी शूट आउट, क्या लग रहा था कि जीतेगी या फिर लग रहा था अरे यार थोड़ा मतलब दिक्कत हो सकती है। आई गेस हाँ, सबसे पहले तो जब पेनल्टी शूट आउट हुआ, सो मेसी ने पूरे सीजन, पूरे वर्ल्ड कप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था अपने सारे सपोर्टर्स में कि अगर पेनल्टी आती है तो मैं लूंगा और मैं उसे कन्वर्ट करूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना। तो वो चीज थी कि हाँ चलो ठीक है, मेसी पेनल्टी लेगा और वो कन्वर्ट कर लेगा, पहले पहले जाएगा और रिदम सेट कर देगा। बट डर ये भी था कि क्या बाकी प्लेयर्स हैं जो कर पाएंगे। तो हम, तुमको याद होगा जस्ट 2 मिनट पहले स्कलोनी ने एक फैसला लिया कि डिबाला को हम डालते हैं अंदर, डिबाला को पेनल्टी खेलेंगे क्योंकि पेनल्टीज पे जा रहा था। आई थिंक फर्स्ट पेनल्टी दोनों टीम का एक तरह से लीडर कह लें, एम्बाप्पे मेसी। एम्बाप्पे फिर से लेफ्ट की तरफ शूट किया, आई थिंक मार्टिनेज राइट पे गया था बट वो इतनी तेज शॉट था कि वो पकड़ नहीं पाया था। आई थिंक फिर मेसी का, हाँ मेसी का शॉट, आई थिंक मेसी के पास बॉल थी और आई थिंक वही वो अपना करने वाला था दैट व्हाट वाज ही गोइंग टू डू, कि अपना वही जो टेक्निक आई थिंक जो नई डेवलप की है, आई थिंक जो थोड़ा वॉक और स्किप करके थोड़ा। तो आई वापस आ थिंक जाओ। जब वो किक लेने जा रहा था तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि वेयर विल ही शूट, इट्स अल्टीमेटली और मैं सोच रहा था कि शायद ये पावर के साथ जाए रादर देन डायरेक्शन। बट आई थिंक
मेसी ने जो किया, जो मेसी करता है, जो कि कोई सोच नहीं सकता। और प्यारा सा लेफ्ट में एकदम जेंटल सा, अगर शायद वो बीच में खड़ा रहता तो एक बार शायद थोड़ा डाई ला के बचा भी सकता था, और डाई मारी भी थी उसने, बट बॉल निकल गई थी। और आई थिंक चीकी, चीकी बॉल एंड भी, क्लास। कुछ भी कह सकते हैं, डेफिनेटली। और 1-1 था, मेसी ने अपना काम कर दिया था, मेसी का वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। 7 गोल्स, 3 असिस्ट, 2 पेनल्टी शूटआउट्स में किक्स। एंड हम्म। अगर उसके बाद कुछ होता तो मैं मेसी को तो ब्लेम नहीं कर सकते यार, इस बंदे ने अपना सब कुछ दे दिया। और आई थिंक एमी मार्टिनेज सेव द डे। तो क्या लग रहा था उसके बाद, मेसी के किक के बाद क्या लग रहा था कि अब तो जीत सकते हैं, जब मार्टिनेज बचा एक सेव की तो? आई गेस जो तुमने कहा कि मेसी के जब पेनल्टी कन्वर्ट हो गई, सो आई वाज लाइक दिस इज द फाइनल किक दैट मेसी विल एवर टेक इन अ वर्ल्ड कप एवर। सो उसने अपना काम कर दिया है, एंड अब ये पूरी टीम पर है कि क्या टीम कन्वर्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। सो वो चीज जब मेसी ने पेनल्टी कन्वर्ट कर दी, सो आई वाज लाइक ओके फाइन, दिस इज डन नाउ, 1-1, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर तो बहुत था, टेंशन बहुत थी, बट ये था कि क्या अर्जेंटीना कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं। डिबाला हाँ, सेकंड पेनल्टी पे जाते हैं, सेकंड। कोमन की। हाँ, कोमन की। एंड उस प्रेशर में कोमन आई थिंक कभी नहीं खेला है, इस वजह से वो उस पे स्कोर नहीं कर पाया, और एमी मार्टिनेज ने पेनल्टी रोक ली। और आई गेस ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे मार्टिनेज ने सही गेस कर दिया, इस वजह से भी रोक ली। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मार्टिनेज ने वो पेनल्टी रोकी, और फ्रांस का जो कॉन्फिडेंस था वो ब्रेक किया कि हाँ अब रुक जाओ, अभी अभी जो है, अभी तुम बहुत आगे मत जाओ, बहुत उड़ो मत काइंड ऑफ कह सकते हैं। सो सेकंड जब पेनल्टी अर्जेंटीना के पॉलो डिबाला ने ली, एंड आई गेस वो डिबाला का मैं प्रे कर रहा था कि डिबाला पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया है, मतलब वो मिनिमल मिनट्स खेला, उससे कोई मतलब नहीं होता। एक कंट्रीब्यूशन होता है एक प्लेयर का, डिबाला जितना अच्छा प्लेयर है, ट्रू नंबर 10 कह सकते हो उसे, वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया है। अगर इस पेनल्टी को उसने कन्वर्ट कर दिया, सो ही हैज गिवन, कह सकते हैं कि ही गेव हिज ऑल फॉर द टूर्नामेंट। सो ये चीज जो मैं प्रे भी कर रहा था कि डिबाला आए और पेनल्टी कन्वर्ट करे, और उसने स्ट्रेट पेनल्टी मारी, जो कि क्लासिक पेनल्टी टेकर को कह सकते हैं। मतलब जो उसने लिया वो क्या ही, कितनी ही बढ़िया बढ़िया पेनल्टी थी। सो आई गेस सेकंड पेनल्टी वाज आई वेरी गुड। थिंक वो उसने मैच के बाद उसने बोला भी कि ये पेनल्टी मुझे एमी मार्टिनेज ने बोला था कि तू सीधा ले। और वो जब जाने ओ, लगा, शूट लेने लगा, तो हाँ, ये न्यूज में मैंने पढ़ा कि जब वो जा रहा था शूट लेने, तो एमी मार्टिनेज ने तो बोला कि सीधा ले। स्ट्रेट, गो फॉर स्ट्रेट। तो शाहरुख एंड खान ही वाला हो डिड इट। गया क्योंकि देखिए मेरी तरफ देखो हे भगवान तो बस सीधा बस शॉट। बस। सो और आई आई गेस यार। थिंक एक जब सेव हो जाती है तो आई थिंक प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि चलो इसमें गलती हो भी गई तो भी हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ बैकअप है, तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर भी कम हो जाता है उसके उसमें। फिर थर्ड नंबर पे अगर बात करें, सो थर्ड नंबर पे आता है अपना चाउमेनी पे। जब तुमने बताया कि एमी मार्टिनेज जब अब उस बॉल को दूर फेंक दिया उसने, तो वो किसने माइंड गेम खेला, जो कि अब मे भी कह सकते हैं अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप के में खेल रही है अर्जेंटीना, तो वो उस टाइम पे जस्टिफाइड किया सकते हैं, क्योंकि उसको तो भाई अपना पेनाल्टी रोकनी है उसको। एंड तो चाउमेनी आई गेस। और उसने काफी एक अच्छा गोल किया था वर्ल्ड कप में उससे पहले, बहुत हाँ हाँ। मतलब लॉन्ग शॉट से किया था। अच्छा। हम्म। तो चाउमेनी जो थर्ड पेनल्टी लेने आता है बंदा, वो कह सकते हैं ही इज ऑब्वियसली नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड एज ग्रीजमान और पोग्बा और बेंजेमा। सो वो उसने एकदम दूर ही शॉट मार दिया, जो कि मतलब डी के क्या कहते हैं ऑन टारगेट ही नहीं था उसका शॉट। और एमी मार्टिनेज ने फिर भी सही डायरेक्शन में कूदा था, तो अगर थोड़ा सा भी इधर होती तो हम्म। भी एमी मार्टिनेज रोक पाता। ये उसने फुल स्ट्रेच लिया था उस तरफ। सो वो पेनल्टी मिस होना, दैट वाज अ very 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 crucial point to change the match, और वो वहां पे थर्ड पेनल्टी मिस। अब चांस था कि अब जो हमारे प्लेयर आ रहे हैं, आई गेस परेडेस आया था, राइट। तो परेडेस को अब उस पेनल्टी को कन्वर्ट करना था, एंड आई वाज होपिंग कि कर दे पेनल्टी कन्वर्ट कर दे। तो थर्ड पेनल्टी के टाइम पे जब परेडेस ने कन्वर्ट किया, तो तुम्हारे क्या वो थे, क्या कैसा चल रहा था मन में? यार मुझे ये पता है, सच में लग रहा था, मुझे लग रहा था लॉरिस एक तो बचाएगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस गोलकीपर, टॉटनहम हॉटस्पर का नंबर 1 चॉइस गोलकीपर, फ्रांस का कैप्टन, इतनी आसानी से लोग हार नहीं मानेंगे। मुझे लगा 2 बार कम कर चुके हैं, शायद अगर एक सेव कर ले तो इनका जो मोमेंटम है और इनकी जो टीम का मूड है
मोराल है वो शायद बूस्ट हो जाए। मुझे लग रहा था लॉरेंस एक तो सेव करेगा ही, बट आई थिंक एट द सेम टाइम पैराडाइज एक, ही इज वन ऑफ द गुड मिडफील्डर जिसका ज्यादा नाम नहीं आता, बट वो हमेशा अर्जेंटीना की टीम में रहा है, काफी पिछले 2-3 सालों से तो लगातार रहा है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि वो शूट कर लेगा। तो आई थिंक अब वो जब शूट किया उसने, तब मुझे लगा यार एक और बस, वन लास्ट टाइम। लास्ट बट आई थिंक यस। और फिर आई थिंक फ्रांस का एक प्लेयर आया शूट लेने के लिए एंड ही स्कोर्ड। तो आई वाज लाइक कि लोग जो भी ओल्मो हुआ, एमी मार्टिनेज ने अपना काम कर दिया है। उसने 2 बचा लिए हैं। अब तो यार एक भी अगर मिस होगा तो वो जीत जाएगी। और आई थिंक लास्ट में मॉन्ट्रियल, मुझे याद है कि जब वो वॉक करके जा रहा था, आई थिंक मेसी अपने मतलब टीममेट के साथ ऐसे रखा हुआ था कंधे पे। और 3-2 था। आई थिंक अगर वो मिस भी कर देता तो अर्जेंटीना के पास एक चांस रहता। लेकिन फिर वही प्रेशर और मोमेंटम फिर फ्रांस पर चला था। और मेरे ख्याल से मैं खड़ा था, मतलब मैं अपनी चेयर से उठ चुका था उस मोमेंट पे जब मोमेंट लेने जा रहा था। मैं भी लगा हाँ। भाई ये चली जाए और ये दुख खत्म हो। आई थिंक मतलब वो मोमेंट मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कभी लाइफ में मतलब भूल पाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट जहाँ मेसी शायद फ्रेम में भी नहीं है, और वो उस प्लेयर के लिए शायद इस अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, और आई थिंक जब वो शूट हुआ और गोल लिटरल गया, गुज और एंड यू आर ऑल लाइक एक तरह से आंखों में थोड़ा, वी ऑल फेल्ट दैट राफेल नडाल ने अभी बोला जब अभी मैच हाँ के बाद कि जब आप रॉजर फेडरर की तरह, जैसे उसने फ्रेंच ओपन काफी टाइम बाद जीता, तो और आप जब देखते हैं लायनल मेसी जैसा प्लेयर, इतना टैलेंटेड, इतना हार्ड वर्किंग, जिसने क्लब लेवल पे सब कुछ जीत लिया है, वो अल्टीमेटली एक चीज ऐसा जो बार बार ट्राई कर रहा है, 6 में 10 में 14 में 18 में 22 वर्ल्ड कप फाइनल, जब ऐसे प्लेयर को, जैसे मैंने एक तुम्हें वीडियो भी सेंड किया था, प्ले सो गुड दैट इवन एवरीवन रेज दैट इज इन द थिंग। आई थिंक वी ऑल वर वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, वी वर ऑल लाइक finally, he has done it. He has done it. He is the greatest of all time. The debate ends here. The Ronaldo fans can go to hell. Nobody can take this away from him. Nobody can take this away from Argentina. The whole team played like a band of brothers. And that was the moment where I was like, yes, Pele, great, 3 World Cups. Maradona single-handedly led him to Argentina to a World Cup. Cristiano Ronaldo, most Champions League wins and most goals. The debate ends here. Every time someone tries to start a debate with me, I'll just say, who won the World Cup? And they'll be like, okay, no more. We are done. Simple, yeah. The debate is done. The debate is द done. What was your feeling when that goal from Montreal went in? What were you feeling? Tell me. हाँ, सो आई थिंक आई गेस जब वो पेनल्टी लेने जा रहा था तो मेरे को ये था कि ये पेनल्टी स्कोर कर दी तो हो गया खत्म, सब बहुत कुछ डिसाइडेड हो जाएगा। और जब उसने फाइनली स्कोर किया सो आई लॉस्ट माय कूल, मेरा दिमाग मतलब अजीदम, मैं इतना इतना एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड भी फील कर रहा था और कितनी प्लस खुशी। हाँ, मतलब रिलैक्स हो गया था कि ओह दिस इज डन नाउ। और मेरा पहला, जब मैं यूट्यूब लाइव कर रहा था तो मेरा पहला रिएक्शन ही वो था, मैं चिल्ला पड़ा सबसे पहले कि जीता है और खत्म करो डिबेट का, गोट का डिबेट खत्म करो अब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेसी वॉन एंड ही कंट्रीब्यूटेड व्हाइल विनिंग। सो वो फीलिंग यार, मतलब वो कह नहीं सकते। मैं अभी भी उसी फीलिंग में ही हूँ पिछले 4-5 दिनों से। सो ये एक ऐसा आई थिंक हम चीज। लोगों ने कितनी बार ईए में, फीफा में कितनी बार अर्जेंटीना को लेके वर्ल्ड कप जीता है, और हमें रिकॉर्ड करते थे कि चलो इसी में मेसी को वर्ल्ड कप उठाते हुए देख लें। तो हाँ आई थिंक जब वो मोमेंट था, एम्बापे को गोल्डन बूट मिला, डिजर्वेडली, ग्रेट प्लेयर। और होपफुली फ्यूचर में वो शायद और वर्ल्ड कप जीत ले, फ्रांस की टीम इतनी अच्छी है। बट 35 years मेसी का लास्ट चांस, he is not the player he was at 25. Acceleration उतना अच्छा नहीं है. He cannot go through a team. He can maybe go through 3 or 4 players. But it was his last chance. 7 goals, 3 assists. I don't a leader, a captain who led from the front. इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता था वो। और आई थिंक जब उसको गोल्डन बॉल बॉल मिला और वो गया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरफ, और उसने जब किस किया उस ट्रॉफी को, I was like, this is it, bro. दिस This इज my फाइनल। this could be the last day of my life, and I'd be happy because this guy has done it. The guy who gave me so much joy, happiness is finally happy.
and I was like, it's fine. The world is fine. The world can go on. The sun will rise tomorrow, and it will rise with Messi as the world champion. यस, ये तो कह सकता है, ये तो है Not यार। Peter Drury, but not bad. The little boy from Rosario, Argentina. तो Hmm. What यार ये what तो was है। your feeling when Messi lifted the cup? एक अगर मैं थोड़ी सी लोकल भाषा, ठेठ भाषा में बोलूँ तो हलक में अटका हुआ था कुछ कई सालों से। वो अब चला गया। अब नाउ आई Hmm. फील लाइक यू नो वो दिक्कत होती थी कि यार अरे यार एक चीज रह गया, यार एक चीज रह गया, ये एक चीज रह गया। अभी भी कंपैरिजन कर रहे हैं लोग, बैलन डोर की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक चीज रह गया, इसको एक ये वर्ल्ड कप जीत जाए तो सब कुछ हो जाए। जब वर्ल्ड कप जीता तो आई वाज लाइक कि डैम, दिस इज द एंड दैट आई वांटेड टू हैव, मेसी शुड हैव। और मेसी मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप था। हम लोग के दिमाग में तो यही था ना कि ये लास्ट मैच है अर्जेंटीना के साथ। होपफुली मेसी ने ये बोला कि अब वो एक चैंपियन की तरह खेलना चाहता है, तो यार एक मैच खेल के रिटायर हो जाए कोई टेंशन नहीं है। मेसी आगे के कोई भी मैच ना जीते कोई टेंशन नहीं है। ही वॉन द वर्ल्ड कप एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। Ultimate prize, ultimate player, ultimate tournament, ultimate final, ultimate opponent in Mbappe, and ultimate difference maker. He has always been the person who has made the difference, and he made the difference at the highest stage you could. And what a victory for Argentina! What a victory for Messi! What a victory! I think India में there must be लाखों fans होंगे. I think हमने देखा कैलकाटा वगैरह में, बांग्लादेश में इतने फैन थे, एंड दे वर ऑल सपोर्टिंग। एंड आई थिंक मेसी ने भी, आई थिंक टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इट फील्स ग्रेट कि अर्जेंटीना को ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं मेरी वजह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आई थिंक व्हाट अ विक्ट्री। और आई थिंक वो जो पोस्ट था उसने जो डाला था, होल्डिंग द वर्ल्ड कप, आई थिंक मोस्ट लाइक पिक विदाउट डाउट, डेफिनेटली मोस्ट लाइक पिक। And what a tournament! I think the best World Cup that I have seen, and the best World Cup final. And he has done it. अब finally, I think अब हमें शायद एक मेसी का दूसरा रूप देखना पड़े, क्योंकि he has done it. There is no debate. I think he must be feeling थोड़ा लाइट फील कर पाऊंगा कि यार अब तो हो गया है, अब आई प्ले फ्रीली। तो हो सकता है अब शायद पेरिस से we'll see a different मेसी। वैसे भी इस सीजन में he has been exemplary। तो लेट्स सी। मेसी थोड़ा एम्बापे के साथ कंट्रोवर्सी भी हो गई, तो अब शायद जाए तो थोड़ा अजब, दोनों में थोड़ा नोक झोंक रहे। बट आए तो जाए, से पहुंचने आए दो तो वहां पे, जाए। सलाम ठोकेंगे सारे बाप लोग। बाप असली बाप तो बाकी है, बाकी बाप पे और छाप पे सब ऐसे ही है। हाँ, साइड। डिबेट खत्म हो गया। हाँ, एक चीज आई थिंक और है कि जो हम लोग शायद एग्री भी कर सकते हैं कि बार्सिलोना के साथ जब वो खेलता था, सो बार्सिलोना के बाद जब वो पीएसजी में आया, सो ही हैज चेंज्ड हिज स्टाइल ऑफ प्ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा दिखता है तो वो तुमको पेनल्टीज में दिखता है कि हिज स्टाइल ऑफ पेनल्टी इज कम्प्लीटली चेंज। और ये चीज ऐसी है कि ये जो हमेशा हम लोग को बॉदर करती थी कि पेनल्टी ले गया यार तो मिस कर देगा क्या, कहीं ऐसा ना हो। हम लोग जब फीफा भी खेलते थे तो कभी कभी मैं डर के मेसी से पेनल्टी नहीं लेता था कि लोग टॉन्ट करेंगे आसपास, तो मैं सुआरेस से या नेमार से ले लेता था। बट अब है कि अब ही साइलेंस्ड हिज क्रिटिक्स, जो उनको बोलते थे कि मेसी पेनल्टी नहीं ले सकता। मेसी कैन टेक द पेनल्टी एंड ही कैन चेंज द गेम। सो ये एक बहुत ही एक ग्रोथ हुआ आई गेस मेसी का जब वो पीएसजी में आया। ही लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जब वो अपने और बाकी लोगों, क्योंकि वहां बार्सिलोना में तो सिर्फ मेसी ही था। और यहाँ पे आके उसने देखा कि और भी स्टार प्लेयर्स हैं, रामोस के साथ खेल रहा है, तो एक ओपोनेंट की जगह जब टीममेट के साथ खेल रहा था, लोग यही कहते हैं कि रामोस के साथ एक साल खेल के मेसी को गुस्सा सीख गया कि अब मैं पीट दूंगा किसी को। तो ये एक चीज है। तो जो पीएसजी में आना आई गेस हम लोग का दिल तो टूटा था जब बार्सिलोना उसने छोड़ा था, बट इट वाज फॉर द ग्रेटर गुड, आई वुड से। डेफिनेटली आई थिंक द प्लेयर मेसी, हम सबको पता है कि वो क्या कर सकता है अपने पैरों से। बट वी ऑल्सो सी द अदर साइड ऑफ मेसी, द लीडर मेसी, जो हमने कोपा अमेरिका में जिसको थोड़ा हमने देखा था, स्पीच बोली थी उसने। आई थिंक ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें यू कैन सी द पैशन, यू कुड सी दैट दे वांटेड टू विन, दे वांटेड इट फॉर देयर कैप्टन, एंड द कैप्टन वाज, you know was giving going to give everything. So I think it was great. Lionel Messi, Copa, mm,
Champions de Monde. What do you say in Spanish? World Cup champion. And he has done it. And it was great talking to you, bro. After so much time we have met, and it was nice that our common topic is still uniting us after so many years. And if people like this, we will definitely continue it, analyze many more things, and we will also be joined by many guests. We'll be joined by some hardcore Ronaldo fans, and we'll be going to have some heated debates. So I hope you do join us for the next episode of this, and please do subscribe to the YouTube channel. Thank you so much. Goodbye, guys. Bye, guys.